हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕੰਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਆਰ ਟਾਈਟਲੀ ਬਾਉਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਐਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਪਰ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਬਣ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਨਸ, ਉਹ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਚਾਰਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਚਾਰਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਸ ਹੀ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, और देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंडक्टर्स का बिहेवियर आप इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में देखांगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है कि नेट इलैक्ट्रिक फील्ड inside a conductor, inside a charged conductor is zero। देखो की मतलब है कि आप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने। ठीक है, सो नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल वाले साइड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EP ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ EP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ E ਇੱਧਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ EP ਇੱਧਰ ਤੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ E ਮਾਈਨਸ EP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। E माइनस EP 0 हो जाएगी। सो इनसाइड द कंडक्टर जी है नैट इलैक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। सो एक तो आली इलैक्ट्रिक फील्ड का असर सीगा ये तो इधर नूं ते जिहड़ी डेवलप हुई इलैक्ट्रिक फील्ड का असर ऑपोजिट हो गया, पर इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड के, तां करके E माइनस EP इज 0। सो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है। सो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। नैक्सट पॉइंट आपां करदे हां। देखो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। की मतलब है देखो कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर दे विच जिहड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सरफेस जिहड़ी आउटसाइड होंदी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन च होंदी है कंडक्टर दे। इहनूं प्रूव करने लई आपां मान लैंदे आ कि इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी है वो थीटा एंगल बना रही कंडक्टर दे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। सो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन विद एट द सरफेस, ठीक है। आउटसाइड थीटा एंगल बना रही है इलैक्ट्रिक फील्ड। जो थीटा एंगल बना रही है तो इसका कंपोनेंट जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट E cos थीटा तक बन जाएगा, इन्हों टेंजेंशियल कंपोनेंट कहांगे, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट नाल की हुंदा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब है कि इहदे करके सरफेस दे उत्ते चार्ज फ्लो करन लग पेगा, ठीक है ना, फ्लो करेगा। पर एक्चुअल दे विच की हुंदा है इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे विच जो कंडक्टर पिया हुंदा है उहदे ते मूवेबल चार्जेस नहीं होंदे, चार्जेस स्टैटिक होंदे हैं, मतलब चार्ज जिहड़ा वो फ्लो नहीं करता। सो फ्लो नहीं करता इहदा मतलब है कि जिहड़ा आ E cos थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे विच इत्थे सरफेस ते चार्ज फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब E cos थीटा 0 होना चाहिए, क्योंकि ये कंपोनेंट चार्ज को फ्लो कराने वाला है। सो ये 0 है, इसका मतलब E तो 0 है नहीं, cos थीटा 0 हो गया, तो मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। सो थीटा 90 डिग्री मतलब हो गया कि जी इलैक्ट्रिक फील्ड एट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, मतलब आ थीटा जिहड़ा 90 ही है, मतलब एक्चुअल दे विच की है कि आ डायरेक्शन है, ठीक है, आ डायरेक्शन है ही नहीं, ओके। सो आपां आ डायरेक्शन मान के चले सीगे, थीटा एंगल बना रही असल च की है 90 डिग्री है, ठीक है। सो ई दी डायरेक्शन इत्थे आ जाती है, आ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। So electrostatic field just outside the charge conductor is perpendicular to the surface of the conductor, ठीक है। So ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट आप करते हैं, और देखो थर्ड पॉइंट है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज 0। इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर नेट चार्ज 0 है, की मतलब है देखो अपन चार्ज कंडक्टर बारे गल करके हटे हैं कि चार्ज कंडक्टर दे इनसाइड द कंडक्टर इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी है 0 है, ठीक है ना, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आप किया सीगा इनसाइड E की वैल्यू 0 है। हुण गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग की है देखो E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज 1.7 टाइम्स द चार्ज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। हुण इनसाइड द कंडक्टर E 0 है, इसका मतलब आ जी चीज 0 है, एज E 0 देयरफॉर
integral E dot ds is equal to 0. Therefore, so charge over epsilon naught equal to 0 means charge is equal to 0. ठीक है, ठीक है, क्योंकि epsilon naught नॉन जीरो क्वांटिटी है, सो चार्ज 0 हो गया. सो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज 0. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट है कि ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅ ਕੰਡਕਟਰ resides at the surface of the conductor. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट से जो करता है कि Q is 0 inside the conductor. Inside the conductor चार्ज 0, जो एक्सेस चार्ज देंगे इनसाइड द कंडक्टर चार्ज 0 रहना है, वाधू चार्ज कितने आ जाएगा, सरफेस के उत्ते इकट्ठा होता है. ठीक है ना, so the excess charge given to a conductor resides at the surface of the conductor. ठीक है, so this is the fourth point. और अपन फिफ्थ पॉइंट करांगे. और देखो फिफ्थ पॉइंट की है, electrostatic potential is constant throughout the volume of the charged conductor and has the same value at its surface as inside it. मतलब ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वॉल्यूम च कांस्टेंट है. की मतलब है, इनसाइड द कंडक्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होएगा, ते सरफेस ते भी सेम वैल्यू होएगी. ठीक है, सो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज कंडक्टर हैज द सेम वैल्यू. ये आप प्रूव करांगे. देखो किवें आप इनसाइड द चार्ज कंडक्टर की गल करांगे. इनसाइड द चार्ज कंडक्टर आपां नूं पता है E0 होंदी है. ठीक है, हुण पोटेंशियल ग्रेडियंट इलैक्ट्रिक फील्ड के बराबर होंदा है. ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होंदा है, dV/dr इज इक्वल टू माइनस E होंदा है. ठीक है, ये आपां पढ़िया है. सो dV/dr इज इक्वल टू माइनस E. ਇਹਦਾ मतलब देखो जो E0 है तो dV/dr 0 हो गया, मतलब V इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है ना, कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव 0 होता है. तो V कांस्टेंट है, मतलब इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया. पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया मतलब इनसाइड इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया. ठीक है, सो इनसाइड द कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया. हुण ये तो इंटीरियर की गल होगी. हुण आपां सरफेस की गल करांगे. सरफेस की गल करांगे उदों आपां की कहांगे, देखो क्योंकि आपां नूं पता है सरफेस ते जिहड़ी चार्ज रिजाइड करता है. ठीक है ना, हुण एट द सरफेस ऑफ द आपां नूं पता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है. ठीक है ना, क्योंकि E जी है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सरफेस. ठीक है, सो E मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सरफेस के उत्ते. ठीक है, जस्ट आउटसाइड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर परपेंडिकुलर है. ठीक है, इहदा मतलब की है, देखो कि आप जे वर्क की गल करिए, सो वर्क की वैल्यू कितनी होंदी है, वर्क डॉट प्रोडक्ट होएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है. ठीक है, सो थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो एक टेस्ट चार्ज नूं सरफेस ते मूव कराने लई आपां नूं वर्क जिहड़ा है वो 0 करना पड़ेगा. ठीक है ना, सो 0 वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इसका मतलब की हो गया कि W जिहड़ा डेल्टा V Q0 होंदा है ये 0 हो गया. ठीक है ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज वर्क होता है. ठीक है, तो डेल्टा V Q0 आपका 0 हो गया, चार्ज 0 है नहीं, डेल्टा V 0 हो गया. डेल्टा V 0 मतलब V कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, मतलब सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया. इनसाइड आप इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था. ठीक है, सो इनसाइड सारा जो इंटीरियर इक्विपोटेंशियल है, तो आउटसाइड जो सरफेस है वो भी इक्विपोटेंशियल है. इसका मतलब electrostatic potential is constant throughout the volume of the charged conductor and has the same value at its surface as inside it. ठीक है, सो मतलब इनसाइड भी
जो वैल्यू सी ਉਹੀ वैल्यू सरफेस ਤੇ ਹੋਏਗੀ। सो थ्रू आउट द कंडक्टर जी वॉल्यूम ऑफ द चार्ज कंडक्टर पोटेंशियल सारे कितने सेम होएगा। ठीक है, तो सारे कितने पोटेंशियल सेम होएगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज कंडक्टर। अब देखो 6 पॉइंट है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। की मतलब देखो कोई कंडक्टर है अपने को जिंदे मान लो इस तरह एज जिवें शार्प पॉइंट बनया है। सो शार्प पॉइंट जिथे बनया होंदा ना उत्थे चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंदा है। चार्ज देखो सरफेस ते इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंदा है। ठीक है, जिथे शार्प है जाएगा ना उत्थे पॉइंट उत्थे चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, क्योंकि देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ी है चार्ज पर यूनिट एरिया होंदी है, तो जिथे शार्प पॉइंट आएगा ना उत्थे एरिया घट जाता है। एरिया घट जाता है तो उत्थे डेंसिटी जिहड़ी है वो वध जाएगी। डेंसिटी वध जाएगी मतलब चार्ज ज़्यादा इस पॉइंट ते चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू करंट पोर्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो आपां फिर कहांगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, सो ये तो हो गया 6 पॉइंट। 7th पॉइंट दे विच आपां इत्थे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करांगे। ठीक है, और देखो 7th पॉइंट की है एक्सप्रेशन फॉर द इलैक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। सो आप इलैक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर से। उन्हें देखो अब चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, उनके ते ना आप एक गोशियन सरफेस बना लिया सिलेंड्रिकल शेप का। सो सिलेंड्रिकल शेप का गोशियन सरफेस है, कुछ पोर्शन ऑफ द इनसाइड द कंडक्टर है, कुछ पोर्शन ऑफ द आउटसाइड द कंडक्टर है। सो इनसाइड द कंडक्टर ई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, ई की वैल्यू 0 देखो इधर 3 पोर्शन है, एक तो आ सर्कुलर जिहड़ा एज है, तो सर्कुलर एज एक आ सर्कुलर एज, एक दा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और आप गोस थ्योरम लगावांगे तीनों सरफेस एरियाज दे विच। इहदे ते गोस थ्योरम लगावांगे क्योंकि ई की वैल्यू 0 है, तो इहदे ते आप ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई 0 है इनसाइड द कंडक्टर है। ठीक है, और सरफेस के उत्ते जिहड़ा कर्व सरफेस एरिया इत्थे आपां मान लो कोई एलीमेंट्री एरिया लीजिए। एलीमेंट्री एरिया का वैक्टर रिप्रेजेंट करता जिहड़ा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन च हुंदा है। ठीक है ना, सो इत्थे देखो सरफेस ते ई की वैल्यू आपां हुणे कैलकुलेट करके हटे कि 90 डिग्री बनाती है, तो ई की आपां जे आपां देखिए इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री दे है। सो इन्हां विच एंगल की बन गया 90 डिग्री। सो ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस ई डी एस कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 0 होता है तो ई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, सो आ जो सरफेस है इतने भी आप इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। हम रह गया आला गोल सरफेस। ठीक है ना, सो बाहरला जो थर्ड सरफेस रह गया मतलब इन्ने पोर्शन अपने को रह गया। ठीक है, सो इनका मान लो एरिया जो ना इनका एरिया डी एस इनका वैक्टर रिप्रेजेंट करता जो। ठीक है ना, वैक्टर हमेशा एरिया को नॉर्मली रिप्रेजेंट करता परपेंडिकुलर डायरेक्शन च। उनकी डायरेक्शन तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम ने, तो अपने को गोस थ्योरम पर लगावांगे ई डॉट डी एस इज चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, गोस थ्योरम ये कहती है। और ई डॉट डी एस इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। इन्हों आप पहले तो आया लिखांगे, देखो ई डी एस कोस 0। ठीक है, कोस 0 क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ई ते डी एस की डायरेक्शन, डी एस की है एरिया को रिप्रेजेंट करता वैक्टर, एरियल वैक्टर को कह देते हैं। ठीक है, कोस 0 1 हो गया। ई डॉट डी एस का ई डी एस इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रल डी एस हो गया चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो डी एस का इंटीग्रल इनका आ सरफेस एरिया आ जाना। इनू जिन्ना तुसी एस कहोगे तो एस लिख देंगे। ठीक है ना, मान लो एस है, एस लिखता आप। ठीक है, इंटीग्रल डी एस का एस लिखता मतलब आ सरफेस का एरिया ये एस है समझ लो। ठीक है, फिर फर्दर चार्ज जी वैल्यू है इहदे चार्ज की होंदा है। सो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होंदा है। ठीक है ना, सो चार्ज पर यूनिट एरिया। सो इत्थे आपां क्यू की लिख देंगे सिग्मा इंटू एस। सो क्यू की थां ते आपां की लिख देंगे सिग्मा इंटू एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। एस कैंसल आउट हो गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है। So this is the value of electric field. So expression for the electric field at the surface of a charge conductor on the value applicable आ गई sigma over epsilon naught E की value. ठीक है। This was the 7th point. We were talking about the behavior of conductors inside the electrostatic field. अच्छा देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਐਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ E ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਓਵਰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਐਂਡ ਇਨਟੂ ਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਨ ਕੈਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਐਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अपन पढ़ना है नेक्स्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप जो पढ़ के हटे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾ ਕੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁਣ ਜੇ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਕੈਪਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਹੋਲੋ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। So they are safe from the outside electrostatic field. So that is called electrostatic shielding. हाँ जी, next topic अपना है डाइलेक्ट्रिक या पोलर सब्सटेंसेस की होंगे। डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर सब्सटेंसेस की ने देखो होंगे इंसुलेटर्स है। ठीक है ना। इंसुलेटर्स होंगे है जिन्हां च बहुत घट फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने, पर इन्हां दी की खासियत होंदी है कि इन्हां दा सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे डोंट कोइंसाइड। ठीक है ना। सो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वो वखरे वखरे होंगे है। ठीक है ना। पॉजिटिव ते नेगेटिव चार्जेस कई मटीरियल तो होंगे जिन्हां च ना पॉजिटिव ते नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम होंदा है। इत्थे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आ गया, इत्थे नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया, ते ये नॉन पोलर होंगे ने। ठीक है ना। सो पोलर सबस्टेंसेस दे पोल्स बन गए, पॉजिटिव ते नेगेटिव पोल बन गया वखरा वखरा। ठीक है। जिवें आपां वाटर मॉलीक्यूल की गल करिए, देखो वाटर मॉलीक्यूल दे विच H2O होंदा है। ठीक है। ऑक्सीजन के नाल 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे होंगे ने। सो हाइड्रोजन एटम को पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन एटम को पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। इनका नैट जिहड़ा पॉजिटिव का सेंटर दोनों का इत्थे आ जाता है। ठीक है ना। सो आ पोल बन गया कि देखो आ जिहड़ा इस तरह अपने को नेगेटिव चार्ज का सेंटर वखरा हो गया, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वखरा हो गया। सो H2O ऑक्सीजन इत्थे है ते हाइड्रोजन एटम्स आ पाए ने दोनों, आ 2 H 1 O H2O। सो इहदे विच ये वाटर मॉलीक्यूल दे विच पोलर एवं HCl होर भी कई मॉलीक्यूल जिहड़े है ये बिहेवियर शो करते हैं। सो ऐसे मटीरियल्स नूं डायलैक्ट्रिक मटीरियल कहा जाता है या पोलर सबस्टेंसेस कहा जाता है। ठीक है। ਹੁਣ देखो जो ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना ऐसे मटीरियल्स ਦੇ ਵਿੱਚ, वैसे तो देखो जिवें ਆਪਾਂ
जो इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो ये मटीरियल इस तरह पे होंगे। ठीक है, सो टेढ़े मेढ़े जोड़े इन्हों के सेंटर इस तरह जोड़े है। ठीक है, सो मतलब नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जी इनसाइड ये लगी है 0 है। जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इन्हों के, ठीक ना, जो इलैक्ट्रिक फील्ड बाहरों अप्लाई करते हैं आप, उदों ये किस तरह बिहेवियर करते हैं, उदों अलाइनमेंट हो जाती है ये इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते नैगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह करके नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सो इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव, 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 इस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जी है डिवेलप होती जो आप फील्ड अप्लाई करते हैं बाहरों। ठीक है ना, सो पोलर सबसटेंसेस का बिहेवियर इस तरह होंगे, होंगे इंसुलेटर ने। ठीक है ना, पर इन्हों के पॉजिटिव तो नैगेटिव सेंटर्स जोड़े है वो कोइंसाइड नहीं करते, तो इस तरह की शेप इन्हों की होंगी है। अब देखो आप हम गल करा ये तो आ गई पोलर मोलीक्यूल्स। ठीक है, नॉन पोलर मोलीक्यूल की आप गल करिए, नॉन पोलर किहड़े होंदे ने, नॉन पोलर होंदे हैं जिन्हों का पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज का जोड़ा सेंटर है वो कोइंसाइड करता है। ठीक है, कोइंसाइड करता है तो उहदे अपने को इस तरह पॉजिटिव तो नैगेटिव दोनों एको जगह पर लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक जगह पर लाई करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इनका पॉजिटिव नैगेटिव सेंटर जोड़ा वो दे आर सेम। ठीक है, हम जो देखो जो इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, जो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने आपको पता है कि इलैक्ट्रिक फील्ड किमें अप्लाई होती है, इधर पॉजिटिव प्लेट होती है, इधर नैगेटिव प्लेट। सो इस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। जो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी शेप जी ना थोड़ी जी डिस्टॉर्टेड होनी शुरू हो जाती है, एक नैगेटिव चार्ज इधर को खिंचा जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर को। ठीक है, सो ये पोलराइजेशन होने लग पैंदी है। ठीक है ना, सो पोलराइजेशन की है, पोलराइजेशन प्रोसैस है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज करने का। ठीक है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो वैन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड एंड द पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज के सेंटर जोड़े है वो सैपरेट हो जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, तो उनकी पोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है ना, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन कहती होंगी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। ठीक है, कहती इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है, सो आप की कहेंगे इतने डाइपोल मूवमेंट 0 है। ठीक है, सो इतने डाइपोल मूवमेंट 0 क्योंकि पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज जो सेंटर है कोइंसाइड करता पाया, इतने वखरा वखरा हो गया जो अप्लाई की एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल मूवमेंट डिवेलप हो गई। ठीक है ना, सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, सो इस तरह भी आप पोलराइजेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।